So yes. So the topic of this video is how to become best in your niche if you are into marketing. ठीक है, अगर आप marketing person हो, if you are in a full time job, if you are doing freelancing, you have an agency, और अगर आप business कर रहे हो marketing से related या कुछ भी, ठीक है, and it can be also if you're creating content on social media regarding marketing also. So how to be uh, at a certain level जहाँ you can see कि you can say कि yes, this is what I want to learn and now I am at that level and how to reach that level. So मैं अपनी story के according I'll share some of my experience and you can relate with that. So there are n number of things which you can do in marketing. You can do कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि how you are learning day on daily basis and how you are growing. ठीक है, so in marketing if you see कि if you are in a full time job you will see कि there are n number of things you have to do at the same time, but in generally in MNCs, in big companies, you will assign a particular role, a simple role like social media, so you will only handle social media. But in startups में बहुत common है कि people will give you any role in marketing, SEO भी कर लो, social media, or is it paid marketing, anything. So आपको उस ट्रैप में नहीं जाना है. If you are able to switch your job, definitely you can switch your job. If you're not able to switch that job, then it is fine. Um, if your job is your the only priority and you don't have any backup, so definitely job नहीं छोड़नी चाहिए. लेकिन what you can do, whether in job or you switch to a particular or whatever it is, pick a niche. Let's say if you have a pick a niche as a consultant in marketing या social media marketing या फिर पेड एडवर्टाइजिंग, या अभी जो ट्रेंडिंग में बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ टू बिकम अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर्सन एंड हाउ टू एक्सेल इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी आप चूज कर सकते हैं, कोई भी नीच, ठीक है, बट पिक वन नीच एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो इफ़ यू आर इन अ जॉब जहाँ आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़े एट द सेम टाइम, अगर आप नहीं भी कर रहे, एक ही चीज़ पे नीच पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है कि आपको डेली चीज़ें सीखनी है, डेली चीज़ें पढ़नी है, एंड यू हैव टू लर्न through time by time and through experiences also. And मैं from my suggestion, personal suggestions, it is also important कि आप जॉब के साथ कोई freelancing projects, anything you can get by reaching out to people, by doing for friends, uh, doing for um, some of the people in colleges, उनके projects में help कर सकते हो. Anything, can be anything, but you should have that exposure of handling different things at the same time, because marketing is not linear. Because when you are working for a D2C brand, agency में हो तो that is a additional benefit, because agency में you will handle a lot of clients. और अगर ऐसा है कि आपको कोई भी बहुत सारे clients की जगह सिर्फ एक ही client दिया हो तो you will stuck at some point. ठीक है, D2C हो, कुछ भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपको जनरल मार्केटिंग आनी चाहिए. जनरल से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी में अगर मैं आपको बोलूँ कि एक एक्विजिशन फनल आप बनाओ, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप बनाओ फॉर अ ब्रांड, फॉर अ क्रिएटर, फॉर अ पर्सनल ब्रांड, तो यू शुड हैव दैट नॉलेज एंड यू शुड, इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट, अगर आपको बेस्ट बनना है मार्केटिंग में तो आपको वो चीज़ करनी है. बेस्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि किसी कंपैरिजन में, but as compared to as compared to yourself, your previous version, you are better day by day. So you are becoming a best version of yourself. जहाँ आप पहले थे उससे better आप हो रहे हो. तो that should be your growth phase, and when you will reach at a certain point कि अब मेरे basics तो बहुत clear है कि अगर मैं मार्केटिंग करने जा रहा हूँ तो व्हाट ऑप्शन शुड आई चूज, डिजिटल, ऑफलाइन,
इज इट, अगर डिजिटल भी कर रहा हूँ तो क्यों सिर्फ डिजिटल कर रहा हूँ, इट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हर चीज़ डिजिटल हो, बिकॉज digital gives you quick distribution. It is as simple as that. Offline will also give you, but offline आपको it will be costly for you if you do advertisement and marketing in offline. There are a lot of people involved, there are a lot of resources involved, but social media and digital is almost free at some point of time. And after a certain point of time it also takes some advertisement cost and all of these things. तो ये बेसिक्स क्लियर होने के बाद जब आपको पता है कि मैं अगर मान लो लेट्स से एक ज्वेलरी की ब्रांड है एंड यू आर क्रिएटिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर दैट, तो पहली चीज़ फर्स्ट चीज़ आप क्या करोगे, यू विल डू एन ऑडिट। ठीक है, यू विल डू एन ऑडिट ऑफ द ब्रांड कि अभी क्या कंडीशन है, इससे पहले क्या थी, क्या कर रहे थे अभी तक, क्या करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो नॉट करेंगे ऑडिट में सिर्फ ये आता है कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है, दैट्स फेयर इनफ, कि अभी क्या चल रहा है, पहले क्या था, एंड व्हाट इज द परफॉर्मेंस नाउ। ठीक है, एंड व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, वो भी। तो ऑडिट के बाद आपको पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और अगर ज्वेलरी ब्रांड है तो मैं ये बोलूँगा कि ऑडिट के बाद आप मार्केट रिसर्च भी करो, बिकॉज मार्केट रिसर्च इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज ऑडिट। अगर आपको मार्केट की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हाउ विल आई गेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्केटिंग, हाउ विल आई गेट बिजनेस फ्रॉम मार्केटिंग, हाउ विल आई गेट रेवेन्यू फ्रॉम मार्केटिंग, सो इफ़ यू डोंट हैव दैट नॉलेज, अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है कि बिजनेस या ये मार्केट कितनी बड़ी है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड बी स्टक कि अब मैं क्या करूँ, आगे क्या करें, कैसे कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग एंड द सेकंड पार्ट इज ऑडिट ऑफ योर ब्रांड। ऑडिट के बाद, मार्केट रिसर्च के बाद, you will find कि there are many case studies, there are n number of ways you can excel this brand. So in marketing ऐसा भी नहीं है कि यही चार तरीके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। There can be many ways to market a product, there can be many ways to do that. It can be paid, it can be organic, it can be anything। ठीक है, तो आपको वो माइंडसेट रखना है कि मैंने ऑडिट रखा, फिर मैंने मार्केट रिसर्च की, अब मुझे पता है कि क्या, कैसे ये ब्रांड के लिए मैं रेवेन्यू ला सकता हूँ, कैसे मैं लीड जनरेशन कर सकता हूँ, हाउ विल आई डू दैट, हाउ विल आई मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, सिंपल, उनकी टारगेट ऑडियंस, ये सारी चीज़ें समझने के बाद मुझे पता है अब क्या करना है। तो दैट्स हाउ योर ग्रोथ विल बी स्टार्टिंग। ठीक है, तो इफ़ यू कैन बिल्ड अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम स्क्रैच to a certain level for a company, for a brand, you will see कि now you have that capability, or you have that instinct कि if some project will be come over to you, you will definitely do good in that। ठीक है, and in marketing as you know communication is important, है ना, everything is important, that वो सारी चीज़ें बाद में आती है, उससे पहले ही सारी चीज़ें आती है। communication is, yes, communication is equally important when you are in a job, business, anything, because marketing teaches you how to be presentable, how to be how to be at that level कि अगर आप कुछ चीज़ें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो हाउ यू प्रेजेंटिंग इट, हाउ यू क्रिएटिंग अ ब्रांड आउट ऑफ इट, ये सारी चीज़ें इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका कि आपका माइंडसेट लर्निंग का है टाइम बाय टाइम, फिर दूसरा आता है कि आप ऑडिट और ये सारे प्रोसेसेस करते हो। ठीक है, and you do experiment with projects, freelance, anything with your job also, और job नहीं है तो of course you will have that exposure of working with multiple brands at the same time। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा आता है कि नीश चूज करने के बाद क्या करना है। ठीक है, लेट्स से मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग चूज करी। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम मैंने चूज़ करी थी, लेकिन परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो समझने से पहले आपको ये समझना है कि लेट्स से परफॉर्मेंस मार्केटिंग है क्यों, मतलब इट्स मोर लाइक कि हाउ डज परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्क एंड हाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्क। कोई भी नीच हो वर्क कैसे करे। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सिंपल सा लॉजिक ये है कि वट एवर यू डू इन अ मार्केटिंग कैंपेन, इट कैन बी पेड, नॉन पेड, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, एनीथिंग। ठीक है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए।
अगर मैंने उसमें एक्स रुपीज स्पेंड किए हैं तो आई शुड गेट अ आउटकम ऑफ 2x 3x 4x 10x एनीथिंग. इट शुड बी बेसिस ऑन परफॉर्मेंस इंटायरली. ठीक है. तो हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कोई भी चीज़ें करते हैं, इट बेसिस ऑन परफॉर्मेंस ओनली. सो दैट्स हाउ. अब आपको आइडिया लगेगा कि नीच में क्या होता है. नाउ यू विल स्टार्ट स्टडिंग हाउ परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे हम पढ़ते हैं. यू विल हैव फ्री रिसोर्सेज, यूट्यूब, एनीथिंग. इट कैन बी एनीथिंग. आई एम नॉट हेयर टू टेल यू कि ये कोर्स पढ़ लो, वो कोर्स पढ़ लो, ये कोर्सेज कर लो, है ना, ये वीडियो देख लो. आई एम नॉट हेयर टू टेल यू. And you will find your way. You have AI, you have GPT, Claude, any everything. So you will definitely you will be learning performance marketing. तो अगर जैसे आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्टार्ट किया या कोई भी नीच हो सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है, तब आपको पता है कि ये नीच क्या है. अब आपको पता है कि क्या करना है. ठीक है. नाउ नाउ इफ़ यू वांट टू बी इन दैट नीच, जब तक in this time frame you should learn the all of the steps required and involved in learning this niche. जब आपने वो सीख लिया तो अपनी जॉब स्विच करो. अगर जॉब स्विच नहीं कर सकते तो साथ के साथ सीखते रहो एंड गेट सम क्लाइंट्स टू एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली. अगर थियोरेटिकली पढ़ा है तो आज ना कल आपके साफ हो जाएगा. ठीक है. आज आती थी परफॉर्मेंस मार्केटिंग, अगले महीने भूल गए. बट अगर आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स, यू विल बी हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग कि होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है. नाउ तो प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केटिंग प्रैक्टिकलिटी से एवरीथिंग वर्क्स. सो इफ मे बी मतलब इफ़ यू डोंट हैव द थियोरेटिकल नॉलेज दैट्स फाइन, वो चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी आपने देख लिया कि पहला स्टेप हमने नीच डाउन किया, समझा, उसके बाद हमने नीच चूज कर ली. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल हु आर फ्रॉम गुड कॉलेजेस इन मार्केटिंग. और कॉलेजेस भी नहीं तो दे आर established marketing persons. Use LinkedIn. Start creating content on LinkedIn. Connect with people. You will find some insights between this. They will tell you ki how how you will be good at this. And I have personally tried it. I've connected with a lot of people who are in their niches and who are the top marketeers. एंड एट दैट टाइम मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा था कि हाँ ये मतलब बेस्ट है. तो आई हैव कनेक्टेड टू देम एंड आई एक्सप्लेन माई प्रॉब्लम एंड दे टोल्ड मी द सॉल्यूशन कि यू कैन लर्न दिस, यू कैन डू दिस. Then you will now you have all of the resources, you have all of the insights. Now it's just like you and your work, and you're great to work harder for it. And at some point of time when you will be practically doing everything, then things will be going autopilot and you will be doing good. And you will be best at it. And it's more of like um, at the end it's all about कि at some point of time फिर आप consulting level पे आ जाते हैं. Now you just have a team and stuff like that, and आप बस manage करते हो how marketing should be done. So it's more of like कि this is how you can be best at marketing. And it's it's मतलब ये किसी भी नीच में अप्लाई हो सकता है. इट डजंट रिक्वायर कि एक पर्टिकुलर नीच होनी चाहिए. अगर मार्केटिंग में किसी भी नीच में आप जाते हो तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, एंड देन यू कैन गेट अप टू दैट लेवल एंड यू विल बी द बेस्ट मार्केटिंग पर्सन अराउंड यू. क्योंकि बिकॉज इफ यू कैन सी देर आर एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, देर आर एन नंबर ऑफ पीपल, ऑल ऑफ देम आर डूइंग एवरेज वर्क. सब बेसिकली दे वो जॉब के लिए आते हैं ना, तो जॉब करते हैं, सैलरी उठाते चले जाते हैं, है ना. सो इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क लाइक दैट, try to follow these steps. It worked for me very well, it worked for you very well. So keep pushing, keep working harder, and I'll leave you with this. Okay, so thank you.